मेरा रंगीला पंजाब। रंगला है पंजाब दा विरसा, एक वार ते आके वेखो जरा। Punjab, the land of brave warriors. Notable for its vibrant culture and history. Reflected in its majestic forts and palaces. These edifices tell us the tales of bravery, love, opulence, providing a glimpse into the life of the regal past. As of 2021, Punjab had an estimated population of around 30 million. The population density is high with about 551 people per square kilometre. Punjab covers an area of approximately 50,362 square kilometres. Punjab is bounded on the west by Pakistan, on the north by Jammu and Kashmir, on the northeast by Himachal Pradesh, and on the south by Haryana and Rajasthan. The literacy rate is around 76.7%, with a high literacy rate among males compared to females. Punjabi is the official and most widely spoken language. Hindi and English are also spoken by many. Punjab has a predominantly agrarian economy, contributing significantly to India's agriculture, particularly in wheat and rice production. Key tourist destinations include Golden Temple, that is Harmandir Sahib, located in Amritsar. It is the most significant spiritual site for Sikhs worldwide. Jallianwala Bagh, a historic site in Amritsar that commemorates the tragic massacre of 1919. Wagah border, the border crossing between India and Pakistan, famous for its daily flag ceremony. Anandpur Sahib, a significant Sikh pilgrimage site known for its historical and religious importance. Patiala is known for its royal heritage, including the Qila Mubarak complex and Sheesh Mahal. Ecotourism. Punjab also offers opportunities for ecotourism, with locations like wetland and Roper wetland, attracting bird watchers and nature enthusiasts. Punjab has produced many Padma Awardees across various fields. These include Padma Bhushans like Shri Sardar Prakash Singh Badal, Professor Jasbir Singh Bajaj, Sardar Swarn Singh, Air Chief Marshal Om Prakash Mehra, Yani Gurmukh Singh Musafir posthumously, Air Chief Marshal Pratap Chandra Lal, Lieutenant General Harbaksh Singh. Padma Bhushans include Yashpal, Prithviraj Kapoor and 43 others. Padma Shri also include Harbhajan Singh for sports, Surjit Patar for literature and education, and 97 others. Punjab also has a rich sporting history, particularly in hockey and athletics. Milkha Singh is known as a flying Sikh. He was one of India's greatest athletes. Balbir Singh Senior, a legendary hockey player, part of Indian team that won 3 Olympic gold medals. Harbhajan Singh, a cricketer known for his spin bowling. Manavjeet Singh Sandhu, a champion shooter in trap shooting. Punjab has a long history of contributing to the Indian military with many gallantry awardees.
Paramveer Chakra recipients include Captain Gurbashan Singh Salaria. He was given the nation's highest gallantry award, Paramveer Chakra, for his cold courage. Flying Officer Nirmaljeet Singh, awarded posthumously for his valor during the Indo-Pakistan War of 1971. Subedar Joginder Singh, posthumously awarded for his bravery during the Sino-Indian War of 1962. Mahavir Chakra recipients include Major General Sehwag Singh and Ramchandar. Punjab is also known as the Granary of India or India's breadbasket due to its high agricultural productivity. In manufacturing, the state has a significant presence, particularly in textiles, hosiery and bicycles. Ludhiana is also known as the Manchester of India due to its hosiery industry. Punjab is developing its IT sector with Mohali emerging as an IT hub. The state has a growing pharmaceutical industry, particularly in places like Mohali and Baddi. The cultural centres include Amritsar, known for its rich cultural heritage, including Golden Temple. Patiala, a cultural hub known for classical music and architecture. Jalandhar, known for its sports goods industry and Punjabi entertainment industry. Heritage buildings include Golden Temple or Harmandir Sahib, Gobindgarh Fort, located in Amritsar, a historic military fort dating back to the 18th century, Sheesh Mahal, Kila Mubarak. And in this edition of State Scan, Sunset TV exclusively speaks to Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh. आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय गुलाबचंद कटारिया जी। सर, स्वागत है आपका संसद। धन्यवाद आपका। सर, अगर आपकी पब्लिक लाइफ की बात की जाए तो शुरुआत आपने गणित के अध्यापक के रूप में की। आप 9 बार विधायक रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। क्या कुछ रोचक बातें आपकी पब्लिक लाइफ को लेकर, आप कैसे देखते हैं ये पूरा सफ़र, कुछ अनछुए पहलू? देखो, ये जो मैं राजनीति में आया, ये मुझे भी पता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैं तो एक सामान्यतः अपना MA B.Ed करने के बाद एक टीचर के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया और एक अध्यापक के रूप में मुझे 3 साल का जो कुछ भी समय मिला, मैं सोचता हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि वाला समय कोई रहा है, जिसमें एक विद्यार्थी का एक अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ किस प्रकार के संबंध रहते हैं और बच्चा अपने गुरु को किस आधार से प्यार करता है, वही मेरे को सबसे प्रिय लगा। लेकिन चूंकि मैं ऐसी जगह नौकरी करने गया था जो उस समय की प्राइवेट संस्था थी और मेरा संघ से जुड़ाव था और उसके कारण से उनको उस समय कांग्रेस राज में संघ का काम करने वाला संस्था में रहे, ये सामान्यतः नहीं होता था। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई कटारिया जी, आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि हमको रोज़ाना सरकार की तरफ से प्रेशर आता है कि ये अध्यापक आपके यहाँ स्कूल में काम करता है। तो मैंने कहा जब तक आपको ठीक लगे तब तक रखना। तो लास्ट में उनका यही सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया कि या तो आप अध्यापक रहो या संघ की शाखा में जाओ। मैंने कहा मैं दोनों ही काम और कहीं जगह कर लूँगा, पर अभी मैं अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकता। और मैं सोचता हूँ क्या पता मेरे उसी पुण्य के कारण से मुझे आगे चलकर राजनीति में इस दिशा में जो प्रभु ने मौका दिया, वो शायद मेरे उस समर्पण का एक विचारधारा के लिए अपनी एक अच्छी भली नौकरी को छोड़ने का भी मन बना लेना, ये मेरे जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो प्रभु ने मुझे आगे चल कर के उसकी कंपनसेट करने का प्रयास किया। कैसे रही राजनीतिक सफ़र की शुरुआत? देखो, राजनीतिक सफ़र जिस समय पहला चुनाव में लड़ा था जी, क्योंकि राजस्थान के उस समय बड़े दिग्गज नेता सुखाड़िया जी एक तरह से उदयपुर के प्रतिनिधि के रूप में भी थे, मुख्यमंत्री के रूप में भी थे। लेकिन आपातकाल में जेल से निकलने के बाद मैंने वहाँ के लोकसभा के चुनाव का, उस विधानसभा का संचालन मुझे दिया था, मैंने उसको अच्छे ढंग से किया और उसमें लोकसभा में उस समय तो सारे देश में जीत हुई थी, तो मेरे यहाँ भी हुई थी। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव था थोड़ा दिनों बाद, उसमें मुझे संघ की तरफ से राजनीति में जाने के लिए एक तरह से मेरा सहयोग किया और मुझे
77 में पहली बार टिकट मिल गया। 77 में टिकट मिलने में मुझे कोई ज़्यादा जोर नहीं आया, क्योंकि संपूर्ण देश का वातावरण आपातकाल के खिलाफ बना हुआ था और इसलिए मैं बड़ा स्वाभाविक उस चुनाव में। लेकिन चूंकि मैं एक बहुत नया आदमी था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, शहर में भी मुझे कोई अच्छी तरह से जानते नहीं थे, और सुघाड़े जी जैसे व्यक्ति, और वो भी मेरे सामने कैंडिडेट, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री जी को मेरे सामने उतारा। बड़ा वेल पॉपुलर थे हीरालाल देवपुरा जी, लेकिन वातावरण और प्रभु की इच्छा थी और मैं अच्छे वोटों से उस चुनाव में जीत करके राजनीति में प्रवेश कर गया। तो पहली बार प्रवेश में मेरा कोई करिश्मा नहीं था, वो तो एक पब्लिक टेम्पो था, उसके कारण से मैं जीत हासिल कर पाया। लेकिन 80 में क्योंकि सारे देश का वातावरण जनता पार्टी के खिलाफ चला गया और लोकसभा में भी हम एक तरह से परास्त हो चुके थे, उसके बाद वाला जो चुनाव था मेरा 80 का, उसमें जीतना और पब्लिक का मुझे समर्थन मिलना, वो निश्चित रूप से एक तरह से मेरी जनता के बीच में जो पहचान और जो सेवा के काम किए या जिस तरह का व्यवहार रहा राजनीति में, उसका ही परिणाम है कि 80 के चुनाव में अच्छे लोग हार गए थे, लेकिन मैं फिर दोबारा वहाँ से जीत गया था। और वो सिलसिला चलता रहा। हाँ, उसके बाद 11 बार आपने चुनाव। एक ही समय ऐसा आया था जब 1985 का चुनाव हुआ, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद। जी। लोकसभा में भी हम केवल 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रह गई थी और वो सारे देश में हमारे खिलाफ वातावरण बन गया। उसके बाद मैं चुनाव लड़ा 85 का, लेकिन मैं मार्जिन पर 1120 वोट से उदयपुर की चुनाव हार गया था। उस समय सभी लोग हारे थे, लेकिन उसके बाद मैंने फिर पार्टी के काम के लिए पूरी ताकत से काम किया और उसके बाद 93 से पता नहीं मेरा सौभाग्य था या कोई मेरा जनता के प्रति प्यार था, उसके बाद मैं लगातार चुनाव जीतता रहा। केवल और केवल एक लोकसभा का चुनाव हो, उस समय जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और मेरा चुनाव उसके बाद वाले में था। जो 15 पहले थे उसमें तो 10 बीजेपी जीते थी और लास्ट के जो 10 थे उसमें से 2 ही जीत पाए। मैं भी उसमें चुनाव हारा, तो मैं एक लोकसभा का चुनाव हारा, एक विधानसभा का चुनाव हारा और वो भी गिरिजा व्यास जी से भी हारा, दोनों चुनाव। लेकिन अंत में मैंने जो उनको ही अपने विधानसभा का चुनाव में हरा करके, एक तरह से उन्होंने मुझे हराया तो मैंने भी विधानसभा में उनको हरा करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बनाए रखी। बिल्कुल सर, इतना लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है और अब जिम्मेदारी राज्यपाल की भूमिका जो है, पहले असम, अब पंजाब और साथ ही साथ चंडीगढ़ के प्रशासक की भी, कितनी समानताएं और क्या फ़र्क और कितने चैलेंजेस? देखो, दोनों में बहुत अंतर है जी। विधानसभा का चुनाव, विधानसभा की जिम्मेदारी, मंत्री बनना, प्रतिपक्ष का नेता बनना, वो एक अलग प्रकार की एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जनता की बातों को विधानसभा के फ्लोर के आधार पर मदद करने का काम था। सरकार में रहते तो सरकार से मदद कराते, सरकार में नहीं रहते तो विपक्ष में प्रयत्न करके अपने लोगों की जो भी समस्याएं थी उनको हल करते। लेकिन ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है और मैं सोचता हूँ कि ये संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में एक जीवन में नया परिवर्तन था। पहले एक कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम करता था और यहाँ एक प्रशासनिक पद पर आने के बाद सरकार के साथ भी, सरकारी अधिकारियों के साथ भी और जनता के साथ भी, तीनों को मिला जुला करके अपने काम को अंजाम देना था। पर मन में एक जो शुरू से ही था कि हम जनता के मालिक नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। जनता के खजाने से ही अपनी पहले दिन की तनख्वाह हर महीने की लेते हैं, वो हमारा सारा खर्चा उठाती है, पेट्रोल डीजल भी वही देती है। तो हम समर्पित भाव से उस जनता की ईमानदारी से जितनी सेवा हो सकती है वो करें, इस भाव को लेकर के ही मैंने अपने हर काम को करने का प्रयास किया है। मैंने पक्ष और विपक्ष भी नहीं है। मेरे राजनीतिक पार्टी में चाहे मैं कांग्रेस की सरकार थी चाहे हमारी सरकार थी, है ना, अगर सही काम किसी विपक्ष के व्यक्ति का भी है और मेरे पास अगर आया है तो मैंने उसको ईमानदारी से उसकी मदद करने का प्रयास किया है। ये नहीं सोचा कि ये चूँकि मेरे विपक्ष का व्यक्ति है इसलिए इसको तंग किया जाए, मैं उस सोच को रखता नहीं हूँ। हम दोनों का ही काम देश को बनाने का है, हम दोनों का काम, पार्टी बाद में है, देश पहले है। इस भाव के संस्कारों के कारण से मुझे ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर परेशानी नहीं आई और राज्यपाल के रूप में भी मुझे यहाँ कोई परेशानी आई। मैं लगभग यहाँ सभी ज़िले, पहले 33 ज़िले थे, बाद में 35 हो गए,
सभी जिलों में मेरा जाना हो गया, सभी के डीसी के साथ और अधिकारियों के साथ मीटिंग हो गई। जितनी भी सीमाओं पर हमारी जो फोर्स लगी हुई है, बीएसएफ है या बाकी, उनके साथ इंटरव्यू था, उनके कैंपों में जाने का मौका मिल गया। आर्मी के साथ भी जो है ना संवाद हुआ है, अधिकारियों के साथ संवाद हुआ, केंद्र की योजनाओं के संवाद हुआ। तो एक तरह से जितना जो मेरे से हो सकता था, और विशेष करके क्योंकि हायर एजुकेशन मेरे पास ही है जी। और नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण था, जिसको हमने प्रारंभ से ही अपने वीसी और सारी टीम को साथ लेकर के, ये आसाम वास्तव में पहला एक ऐसा राज्य है कि यूनिवर्सिटी में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई, उसके एफिलेटेड कॉलेज जो भी हैं उनमें भी पूर्णतः एक तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला कोई राज्य है तो उसमें आसाम है, और उसमें हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया। सर, पंजाब और चंडीगढ़ को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं? देखो, क्या है कि पंजाब की समस्याएं कुछ अलग प्रकार की हैं। पंजाब में क्या है कि पाकिस्तान के साथ कई ज़िले के बॉर्डर हमारे उनसे मिलते हैं। लगभग 425 किलोमीटर का एक तरह से पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, और उस बॉर्डर के कारण से कई प्रकार की चुनौतियाँ वहाँ है। विशेष करके पाकिस्तान और उनकी जो आईएसआई है वो इस बात का प्रयत्न करती है कि सीमा पर असंतोष को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो उसमें भी वो लगे हुए रहते हैं। फिर क्या है कि ड्रग का आना जाना बहुत बड़ी तादाद में होता है, और उसके कारण से ड्रग का जो है एक तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार है। उस नेटवर्क को कैसे कमज़ोर किया जाए, बॉर्डर को कैसे सिक्योर किया जाए, हमारी जो फोर्सेज हैं उनके साथ लोकल लोगों को कैसे जोड़ करके और वहाँ की काम किया जाए, ये एक चुनौती है। और एक नई चुनौती और जो ड्रोन के माध्यम से जिस प्रकार से हथियार भी आ रहे हैं, ड्रग्स भी आ रही है, कई ड्रोन गिराए भी जा रहे हैं, कई पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये नहीं कह सकते कि हम 100% ड्रोन को समाप्त कर पाए हैं। तो बॉर्डर की समस्या एक बड़ी समस्या है। फिर यहाँ की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों एक ही पार्टी की थी, उसका काम करना अलग तरह का था। वहाँ की क्योंकि सरकार केंद्र की अलग तरह की है, जिन्होंने हमको जिम्मेदारी दी, और वहाँ आपकी सरकार है, तो दोनों के वैचारिक मतभेद हैं। ऐसे समय में उनके साथ किस तरह से मिल करके काम किया जाए, इसके लिए जो है ना वो एक चुनौतीपूर्ण है। पर विश्वास है, क्योंकि हम सही काम करने के आदी हैं, इसलिए हम ये नहीं है कि किस पार्टी की सरकार है क्या है, सही काम हो, और जो सही काम है उसमें हर समय मदद करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। सर, राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि राज्यपालों को पुल का काम करना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते आप किस तरह से इस समन्वय को और बेहतर करेंगे? निश्चित रूप से मैंने राज्यपाल की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध और पुल के रूप में काम करना है। इसी तरह से पब्लिक और सरकार के बीच में भी पुल के रूप में काम करना है, और केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बारे में देखना। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिससे वहाँ के कॉमन आदमी को जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए वो मिला या नहीं मिला है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, देश सुरक्षित रहे, देश में अराष्ट्रीय गतिविधियाँ नहीं हो, उसको भी ध्यान में रखना है, और नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार सरकारें अपना काम करें, उसमें एक सहयोगी के रूप में काम करना है। और इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हम सब हैं उस जनता के लिए और देश के लिए हैं जिस देश के अंदर हम पैदा हुए हैं। हमारा पहला काम है राजनीतिक पार्टी से और विचारधारा से ऊपर उठ कर के भी देश को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण और व्यवहार को करना है, और कोई ऐसी कमी नहीं छोड़नी है जिसके कारण से लोग हम उस पर उंगली उठा सकें और हमारे बारे में कोई कह सकें कि हमने निर्णय किया वो फेयर नहीं किया। सर, राज्यपालों के सम्मेलन में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी बेहद महत्वपूर्ण बात की कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सरकार के साथ बहुत ज़रूरी है, जो राज्य की सरकार के साथ। तो उसका कोई रोड मैप है आपके ज़हन में? मैं सोचता हूँ कि मैं समय पर भी इस बात की कोशिश करूँगा, मुख्यमंत्री से बुला करके भी जो मुझे समस्याएं जनता के द्वारा या जो महसूस हुई है उनको मैं आमने सामने बात करके अपनी बात और उनकी बात सुन करके समझ करके हल निकालने का प्रयास करें। और दूसरा ये है कि वहाँ के जो सरकारी सारा का डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं
उनके साथ भी मेरा लाइजन ठीक प्रकार से रहे। फिर क्या है कि केंद्र शासित चंडीगढ़ है जी। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके हर फंक्शन के बारे में, हर काम के बारे में भी ठीक प्रकार से एक तरह से उसका मॉनिटरिंग भी हो, ठीक प्रकार से उनको गाइड भी करें और मिल करके कैसे काम करें। तो चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, पर विश्वास है कि जब हमारा किसी में कोई स्वार्थी नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ जाए नहीं, जाए सो मेरा नहीं, इस विचार को लेकर के जब हम चलते हैं तो मैं सोचता हूँ कभी भी किसी भी जगह कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, चलते चलते आपका क्या संदेश है पंजाब की जनता के लिए, क्योंकि आपने कहा है कि मैं एक जनसेवक हूं और मेरे काम की समीक्षा 6 महीने बाद करें, क्या संदेश? निश्चित रूप से मैं पंजाब की जनता को आश्वस्त करता हूं कि मैं पंजाब और केंद्र के बीच में एक समन्वय का काम करूंगा। पंजाब के हित में और देश के हित में जो काम होगा वही मैं काम करूंगा, पूरी सच्चाई ईमानदारी से, और एक जनसेवक बनकर काम करूंगा। एक महामहिम बनकर के काम करने की मंशा नहीं है। कॉमन आदमी भी अपनी समस्या को लेकर मेरे तक आ सकेंगे, मैं उनको सुनूंगा, समझूंगा, और अगर वो सही होंगे तो उनकी हर प्रकार से मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं जनता से भी चाहता हूं कि हम सब लोगों का दिल और दिमाग देश नंबर 1 पर रहे, राजनीतिक विचारधारा उसके बाद रहे। इस सोच को लेकर के काम करेंगे तो हम देश के निर्माण में सहयोगी बन जाएंगे, इतना मेरा आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सनसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें सनसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.